Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We have done the multiplexer and demux. Okay, so once you are done with the multiplexer and demultiplexer, basically half the battle is done because you understand the logic of designing the circuits. That's why it's important in big in the beginning. Now, if you say decoder and encoder, only thing is different functionality, but what we did in our multiplexer, the same thing will happen here. Do you understand? So it is you guys now who will build it. I will build the logic, but the maximum times the talking should be done by you. If you have understood at all how mux and demux worked. Okay. So what is then this decoder and encoder? Okay, it is a combinational circuit. Okay, do you know what's the difference between combinational circuit and sequential circuit? Have I told you that thing? I don't think I've told you that thing, but anybody knows that combinational circuit? Because circuits are of two types. Either they are combinational circuits or they are as a sequential circuits. Sequential circuits we'll see later on. We'll see flip-flops and latches. What happens, you should know that before we move into it. What is because you will see a decoder, encoder, multiplexer, all it is a combinational circuit. It's a so you should have asked me this question. Okay, so what is a combinational circuit and what is a sequential circuit? Is in the combinational circuit is simple. Combinational circuits input comes and output, whatever output, 1 or 2 or whatever outputs are, because in the decoder we don't have one output. In mux we had only one output. So whatever the outputs are, inputs come and outputs go. There is no relation between the outputs and inputs again. Inputs are separate entity, outputs are separate entity. But sometimes there are circuits when inputs comes in, the output not only depend on the input, okay, but also the output, the previous output tha, that gets stored somewhere and comes back into the output. Okay, for example, your adder, what do you say about adder? You are adding the 2, you are adding the 2, but we are not only adding the 2. Say for example, we are adding 1 and 1, it will give me the answer 2. लेकिन इससे पहले जो इसने ऐड किया था वहां पे कैरी आया था 1. So now this is not 1 and 1, this is actually 1 and 1 and 1, that is 3. So the input, the adding of these two not only depend upon, so if I'm an adder, it not only adds these two, but it has to take care of the previous output जो कि इससे पहले आया था. ठीक है? So that means that is somewhere stored in a memory and it goes back to the input. So the current output is not only dependent on the current input, but also some other output. जो कि इससे पहले आपने कुछ किया था उसका आउटपुट, जैसे सबट्रैक्ट, फुल सबट्रैक्टर में आपको बोरो आया था. ठीक है, सो प्रीवियस बोरो का भी ख्याल रखना पड़ेगा. वो प्रीवियस बोरो कहां से आया था? वो इससे पहले जो आपने इनपुट्स दिए थे उनसे जो निकला था आउटपुट, वहां से आया था. सो यानी कि जो आपके इनपुट्स हैं, if your output is purely on the current input, that is it, like half subtractor, like multiplexer, like decoder, encoder and all those things, then it is called as a combinational circuit. But if your current output is not only dependent upon the current input, but also on the some output, जिससे पहले output, previous output कुछ निकला था, उस पे भी मुनहसर है, so it will be called as a sequential circuit. Understood? समझ में आया? किसी को कोई question इसके बारे में? He or she can open up the mic and ask a question if anyone has. So we have done multiplexer, demultiplexer. Now decoder and encoder, we have two things, decoder and encoder. Now this तरह mux or demux, they were ulta, reciprocal of each other. Same is the decoder and encoder. Now decoder में क्या होता है कि आपके पास कुछ inputs होते हैं. You have with n inputs and m outputs. Okay, you have some inputs. Okay, and here you have some outputs. And you have to create, say you have n inputs, but you have m outputs. So 2 raised power n is that m. So if you have an n inputs, okay, so say you have 2 inputs, for example, now you are going to have a 4 outputs. So अगर आपका n 2 है, so it's going to 2 raised power 2 outputs. This is the decoder. Encoder इसका उल्टा. If you have 2 raised power 4 inputs, then you will have only 2 outputs. Okay, so that means there are 2 raised power n possible input combinations. For each of these input combinations, only one output will be high active, all other outputs are low. बाकी सारे के सारे जो हैं वो लो हो जाएंगे,
लेकिन अब इन आउटपुट में कौन आप चूज करोगे, ठीक है, जो आउटपुट्स मेरे पास आएंगे इसमें कौन चूज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इनपुट। जैसे हमारे मक्स की सिलेक्शन बिट्स जो थी वो डिसाइड करती थी किसका आउटपुट जाएगा बाहर, और वही सिलेक्शन आपने साइड में लगा दिया है, बस वही है, जो आपकी सिलेक्शन बिट्स नीचे वाली थी उसको आपने साइड में लगा दिया है, और आप बता रहे हो कि कौन सा आपका आउटपुट इनेबल होगा। यानी कि देखिए यहाँ देखिए ये वाली डायग्राम देखिए, so I have A0 to AN-1, ओके, इतने सारे इनपुट्स है मेरे पास, ठीक है ना, और इतने सारे मेरे पास आउटपुट्स है। अब इनमें से कौन सा आउटपुट, बिकॉज इनमें से सिर्फ एक आउटपुट होने वाला है हाई, ओनली वन आउटपुट हैज टू बी हाई, रेस्ट आर लो। से फॉर मुझे B0 सिलेक्ट करना है, सो ऑल ऑफ देम हैव टू बी लो, ठीक है ना, all of them have to be low, only one output will be high, depending upon what the combination here was, depending upon what the combination we have here, so that we generate only one output. Not getting clear? I am understanding that. Now look here, this will make you clear, this will make it clear properly. We have two inputs, and how many outputs we have? 4. I told you if you have n inputs, you are going to have 2 raised power n outputs. So this is called the 2 to 4, 2 cross 4 decoder, okay, 2 cross 4 decoder, where we have two inputs A and B. And what are the number of possible input combinations? What are the combinations possible if you have two inputs? If you have two inputs, combinations can be 0 0 0 1 1 0 1 1. So we have 4 combinations possible. Depending upon these combinations possible, we will have that much of output, because these two lines can select 4 lines. Javed, you have some voice and no cam. Open up your cam. So what I'm saying, if you have a 2 input lines, how many output lines it can select? 4, is it? Because by 2 bits I can generate 4 combinations. Because what I'm saying, what is decoder? Decoder is saying you are having some input lines, and using the combination of those lines, you will have that much of output lines, and out of all of those output lines you will select only one. Say for example, here the inputs are 0 0. We know our selection should be D0. If it is 0 1, then the D1 should get selected. If it is 1 0, then D2 should get selected. If it is 1 1, then D3 should get selected. Okay, so this is what decoder is. Decoder is you have n input lines, okay, so why we have 4 output lines? Because n input lines can have 2 raised power n combinations. ठीक है ना, मेरे पास सिलेक्शन करना है, मेरे पास एक ही बिट है, मेरे पास एक ही बिट है, मैं मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ जावेद आ रहा है लेफ्ट साइड, और फिर राइट साइड जाजिबा आ रही है। अगर मेरे पास एक ही बिट है, आई कैन मेक इट आइदर 0 और 1, क्योंकि एक बिट क्या ले सकती है, तो 0 ले सकती है या 1 ले सकती है। So combinations can only be 2. So I can select Javed and Jaziba. That means if I have only one bit, I can select only 2 people. 0 for Javed, 1 for Jaziba. But if I have 2 bits, now I have 4 combinations: 0 0 0 1 1 0 1 1. So I can select 4 people. I can select Jazib, Faiba, and Sumayya. I got 4. So I will call Javed 0 0, Jaziba 0 1, then Faiba 1 0, and Sumayya 1 1. Because I have 2 bits. Okay, now what are my 2 bits? If my 2 bits say 1 0, that means I'm talking about Jaziba. If my bit says 0 0, I'm talking about Javed. If it is 1 1, I'm talking about Sumayya. Now if I increase my bits to 3, then how many combinations I can have? I can have 8 combinations: 0 0 0 up to 1 1 1. That means if I have 3 input bits, I can generate 2 to the power 3, that is 8 combinations. So that means I can have 8 combinations here. So if I have 3 inputs, I can have 8 outputs, because I can select 8. If I have only 1 bit, I can select only 2 people. If I have 2 bits, I can select 4 people. If I have 3 bits, I can select 8 people, because my combinations can be 0 0 0 up to 1 1 1. Aman, if I have 4 bits, that means if I have 4 inputs,
How many outputs I can support? Sir, 16. 16, absolutely, because 2 to the power 4, that is 16. So a decoder which has 4 input lines can select out of 16 output lines one of the lines, depending upon what was the combination of these inputs. जैसे आपके मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन बिट्स जो काम करते थे ना, अगर 0 0 है तो पहला होगा, अगर 0 1 है तो दूसरा, and so on. Same is here. Therefore, I can use this to make my multiplexer. I can use decoder to make my multiplexer also. Does it make sense what I'm saying? So now what is my logic? How I do the circuit? Oh no. If anyone is not getting, please tell me. हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा अच्छे से. I will try my level best to let you understand. क्योंकि मल्टीप्लेक्स अगर आपको समझ आ गया ना तो इसमें आप परेशानी नहीं होनी चाहिए. So, but अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, he or she just stop me. ठीक है? Just one. Maharish Ajaz is saying, what is decoder exactly? What is my question is, what is decoder exactly used for? What is this used for? Like this is a very good question, in fact, because we had a who has also Maharish Ajaz. It is Mehru Shafi. Maharish Ajaz is I guess CR. ना वो पता नहीं कहाँ हम मेरे को दिख नहीं रहे. Anyways, here is with the hijab, complete hijab, right? MashaAllah. We got a Mahvish with the complete hijab and Maharish Ajaz the complete hijab. May Allah firstly bless you all, and especially these girls with the complete hijab. So what I'm saying is, not me, what Maharish is saying is, what is this decoder used for? Multiplexer में समझ आ गया कि multiplexer भाई एक यहाँ से बहुत सारे इनपुट्स हैं तो इनमें से एक ही आउटपुट बाहर जाएगा. ठीक है ना? इसी तरीके से अगर आपका डीमल्टीप्लेक्सर है तो आपको एक ही सोर्स है और बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं. मल्टीप्लेक्सर में एक ही आउटपुट था, बहुत सारे, अदनान महराज अब आ गया. ठीक है ना? अब ये डिकोडर किस में लगेगा? डिकोडर एंड एनकोडर. ठीक है? डिकोडर में क्या है? पहले 2 इनपुट्स हैं और आपको बहुत सारी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है. तो पहले ही मैं आपको बोलूंगा जो आपने मल्टीप्लेक्सर बनाया, मक्स जो आपने बनाया, मैं पहले ही आपको ये दूंगा. इसके बहुत सारे यूजेस है जो कि हम आगे करेंगे भी. आपको मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है ना? मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है कि इसको सिलेक्ट करना होता है इनमें से एक लाइन. जो जितनी भी यहां से लाइंस है, अगर 4 लाइंस हैं, 4 लाइंस में से एक आपको सिलेक्ट करनी है. मैं कह रहा हूं आप 2 सिलेक्शन बिट दे दो, उससे ये हो जाएगा. क्या मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं मल्टीप्लेक्स बनाने में डिकोडर को? बिकॉज डिकोडर इज डूइंग मी दैट थिंग. आई कैन यूज डिकोडर टू डू दिस. दिस इज द वन थिंग. ठीक है? बस में आ रही है? कांट आई डू दैट? अच्छा, आपको ये समझ आ गया? क्योंकि मल्टीप्लेक्सर यही काम कर रहा था ना इसकी सिलेक्शन बिट्स. So I can use decoder here to do this, to select this thing. So I can use multiplexer using decoder, or I can use multiplexer using multiplexer only, जिसे हमने किया. Okay, but I can create multiplexer using decoder, because decoder can do me that job. जो सिलेक्शन बिट्स का काम, या मल्टीप्लेक्सर खुद का सर्किट बनाएंगे, इसे बनाया था हम, या हम डिकोडर का सर्किट बना के उसको कर सकते हैं. Having said that, okay, अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर है and I want to convert into some decimal. ठीक है? मेरे पास बाइनरी नंबर है. ओके, लाइक दिस इज 0 0, क्योंकि ये जो यहाँ पे इनपुट्स आएंगे, यहाँ पे कभी 0 0 आएगा, कभी 0 1 आएगा, कभी 1 0 आएगा, कभी 1 1 आएगा. ठीक है? और मैं चाहता हूं इनका यहां से बाइनरी आउटपुट निकले, डेसिमल आउटपुट निकले. ठीक, मैं यहाँ पे ये सर्किट्स यहाँ पे बनाए हैं. यहाँ पे सर्किट मेरा है जो कि 1 आउटपुट देगा ऑन अ स्क्रीन. उसके बाद एलईडीज मैंने लगाई हुई है वगैरह वगैरह. तो ठीक है, यहाँ ये 2 देगा आउटपुट, 3 देगा आउटपुट, 4. तो मेरे को अगर करना है काम, मुझे बाइनरी टू डेसिमल बनाना है, मैं बीच में डिकोडर लगाऊंगा. ठीक है? तो कोई भी ऐसा काम जहां पे आपको यहां से बाइनरी की इनपुट जैसे हैं 0 0 0 1 1 0, और आप एक लाइन सिलेक्ट करना चाहते हो उससे. ठीक है? या आपने एक लॉजिक बना दिया सर्किट्स का, जिसमें आप कह रहे हो कि अगर आप प्रेस कर रहे हो 1, ठीक है, आपको ऐड होगा. मैं आपको दे रहा हूं एग्जांपल्स ओनली. अगर आप 2 प्रेस करोगे, आपको सबट्रैक्ट होगा.
अगर आप 3 प्रेस कर रहे हो आपको मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डिकोडर लगाऊंगा बीच में। मैंने अगर यहाँ पे 0 0 आ गया, 0 आ गया, ये सिलेक्ट करेगा, इसके साथ में ऐड सर्किट लगाऊंगा। अगर इसने बंदे ने 0 1 दे दिया तो दैट मींस डिकोडर विल सिलेक्ट ओनली D1, इसके साथ में सबट्रैक्टर लगाऊंगा एंड ऑल दैट। एंड ओके, वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन लेटर, बट लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज़ यहाँ से टाइम जाएगा। Let us first understand how we build this decoder. Okay, keep asking questions and don't stop asking questions, right? This is very good. Live classes shouldn't be like news or some YouTube video. It shouldn't be like a YouTube video where the teacher talks and all that. Is it? Live classes are meant for interaction, where students ask their doubts, whatever the doubts they can have. On a YouTube video you cannot ask your doubt. YouTube video is a one-way story. Okay, the live class का मतलब ये है कि 2-way story. It should be you talking more than me. अच्छा, अब मुझे बनाना है इसका सर्किट। पहले ये सीखेंगे, फिर वो ये क्वेश्चंस फिर से इसके ऊपर आएंगे हम with precision, doing some example on it. That is actually in this slide. in जो स्लाइड ये है इसके अंदर मौजूद है वो चीजें। तो फिलहाल मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। सो 2x4 जो मैं बता रहा हूँ डिकोडर है, 2x1 I want to do it. So Rizwan Hussain, open up your mic. Yes. So what is we trying to do? हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे बेटा? अगर हमें सर्किट बनाना है, हमें लॉजिक सीखना है ना, इसका लॉजिक हम क्या चाह रहे हैं? शाबाश, आई विल हेल्प यू। हम चाह रहे हैं कि कुछ इनपुट्स आए, ठीक है, जैसे इनपुट आ गया यहाँ पे 0, लिख क्यों नहीं रहा, जहां से यहाँ पे इनपुट आ गया फॉर एग्जांपल 0 1, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं इस इनपुट पे क्या हो कि इन आउटपुट्स में से कोई एक आउटपुट सिलेक्ट हो, ये चाह रहे हैं हम, है ना? क्या चाह रहे हैं, फिर से रिपीट करो कि जो भी इनपुट आएगा उनके बिना पे, दिस इज व्हाट डिकोडर इज ऑल अबाउट, ऑल ऑफ यू, कि जो भी इनपुट आएंगे उनके बिना पे कोई एक सा आउटपुट सिलेक्ट हो। सारे सिलेक्ट होने चाहिए, एक सिलेक्ट होना चाहिए? सारे आउटपुट सिलेक्ट होने चाहिए, एक सिलेक्ट होना चाहिए? एक सिलेक्ट होना चाहिए। वेरी गुड अदनान। लेकिन कौन सिलेक्ट होगा वो किस पे मुनसर होगा? ए और बी पे। ए और बी पे, इनपुट्स पे, ठीक है। सो जो मेरे इनपुट्स हैं ए एंड बी, इसके ऊपर मुझे ये देखना है कि कौन सा आउटपुट कैसे आएगा। तो मैं टेबल बना रहा हूं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि भाई अगर इनपुट 0 0 है, अगर इनपुट, तो मुझे D0 D1 D2 D3 में से D0 सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर इनपुट्स 0 1 है, मंशा भट्ट आप मुझे बताओ हम क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं डिकोडर से, हम क्या चाह रहे हैं कि, शाबाश बेटा, हाँ मंशा, यस, हम क्या चाह रहे हैं इस डिकोडर से? शाबाश, ट्राई, आपको आएगा इंशाल्लाह, इसलिए मैंने पूछा। शाबाश, आप ये म्यूट हो गया आप। सर हमें जो सिलेक्शन बिट जो वाली हमें सिलेक्ट करनी है उसका आउटपुट हमें देखना है। हाँ, ये इस वक्त सिलेक्शन बिट्स नहीं, ये इनपुट्स है इस वक्त। हाँ, हमें दो इनपुट्स से कोई एक सा आउटपुट सिलेक्ट करना है। सो अगर हमारे पास दो इनपुट है, आउटपुट कितने होने वाले हैं? 4। तो अगर मैं इफला शेरा से पूछूंगा, अगर मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, if I have 3 inputs, ifla, how many outputs I can have? 60. 2 raised to power 3, that is 8. Yes, we can have 8 outputs. क्योंकि अगर मेरे पास 3 इनपुट्स है ना, 3 इनपुट मीन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. I can have only this much of combination. So फर्ज कीजिए ये मेरे आउटपुट्स हैं, तो मेरे पास इतने ही आउटपुट हो सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे इसके बाद और एक आउटपुट आ गया 8, वो 3 बिट्स से सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 8 मींस 1 0 0, उसके लिए मुझे 4 बिट्स चाहिए। तो 3 इनपुट से, अगर मेरे पास इनपुट्स यहाँ पे 3 है, उन 3 इनपुट की वजह से मैं 8 को सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरे को आउटपुट नहीं हो सकता है, क्योंकि आउटपुट
मुझे सिलेक्ट करना है ना यूजिंग दीज इनपुट्स। अब आ गया क्लियर सबको? यस सर। अच्छा जी, अब मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो मल्टीप्लेक्सर से बनाया वैसे ही बनाना है। यू शुड बी एबल टू टेल मी व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मेरे पास इनपुट अब 0 0 है तो D0 should get selected. If it is 0 1, D1 should get selected. If it is 1 0, then D2 should get selected, right? D2 should get selected. If it is 1 1, input is 1 1, then D3 should get selected. है ना? So how, think about it. मैं next slide नहीं दिखाऊंगा, पहले मुझे बताओ आप इसको कैसे हम करें। जैसे मल्टीप्लेक्सर हमने किया यार, आप को जब हम पढ़ते हैं ना उसके बाद आपको मेहनत करनी है कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए, ठीक है ना? अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, मैं वीडियो भी दे रहा हूँ, किसी को अगर लेक्चर में समझ नहीं आएगा उसके चांस है कि वो बाद में नोट बनाएगा, अच्छे से समझेगा अपनी स्पेस में। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको चेंज नहीं करेगी। इट इज यू हु कैन हेल्प यू, ठीक है ना? मैं कुछ भी कर लूँ, आप घर में फिर मेहनत ही नहीं करोगे, किताब ही नहीं खोलोगे, आप नोट ही नहीं बनाओगे, तो फिर उससे नहीं होगा कुछ, देन आप लकीर के फकीर ही रहोगे। ये बात याद रखो, ठीक है ना? नाउ यू हैव गॉट अ चांस टू चेंज योरसेल्फ, ठीक है ना? एंड डू इट, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद 2 हैंड्स, डोंट मिस इट। समझ में आ रही है सबको? तो लेक्चर के बाद, खत्म होने के बाद सोना नहीं है, उसको 1 घंटा कम से कम देना है इस चीज को, तो वरना हम रोज रोज यही बकवास करते रहेंगे। अच्छा, इसको मैं एक सर्किट कैसे बनाऊंगा? कैन एनीवन हेल्प मी इन दिस? हम एंड गेट और नॉट गेट का इस्तेमाल कर। Absolutely, this is that Chishti girl, right? We will use AND gates and NOT gates, ठीक है ना? So let us see it now. Here it is. Because when will be D0 selected? D0 will be selected when both are 0. A is 0, B is 0. When will be D1 selected? That will be for 0 1. I don't know, D3 कहाँ से आ गया यहाँ पे? ये नहीं है, ये गलत है। This is AB complement. That's A and B complement. This is A. It is 0 1 and but why is it this is wrong? This is A complement B. Okay, D1 is जैसे यहाँ पे लिखा है A complement B, right? Because it's 0 1. When will be D2 selected? For 1 0. What is 1 0 meaning? A B complement, क्योंकि B 0 है ना, जो 0 में उसको complement करना है, simple. And when will be D3 selected? असल D3 यहाँ पे था, ये यहाँ चढ़ गया था. What is D3 selected? When A is 1, B is 1. That is AB. So how we do it? We have here A, we have here B, and we have here A complement and B complement. So I ask Aqib Fayaz, when will be D0 selected? Yes, sir. For what combination D0 will be selected? So 0 0. Yes, because I told you this is my decoder. We have 2 inputs A and B, and we have outputs 3, 4, D0, D1, D2, and D3. So when will be D0 selected? When this A, B is 0, 0. That means, what does that mean? What does that mean in terms of circuit? A 0, B 0? Sir, complement जाएगा इनमें sir. Complement जाएगा. We give A complement and B complement, as you could see here, and we could see B here. So it is getting D0 is getting B complement, and from it is getting A complement. So because why? Because if it is 0 0, when the input is 0 0, the 0 from the complement becomes 1, the 0 from this complement becomes 1. So it will get 1 from the B and 1 from the A. So AND gate will be true. So that means this will get selected. Does it make sense? It's same as multiplex जो हमने किया था, उस पे मेहनत की थी. अब जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वो घर में करता ही नहीं है, तो उसके इसके लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है ना? उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता ना, जब आप खुद फिर पढ़ोगे नहीं, रिटेन कॉन्सेप्ट रिटेन नहीं करोगे। ये ऐसा होता है कभी कभार कि आपको होता है ना वो जाली वाली वो प्लास्टिक बास्केट जिसको नीचे जाली होती है, ठीक है ना, जिसको ना अक्सर हम साग वगैरह किचन में रखते हैं, जिसमें फिर धोते भी है, उसको नीचे से होती है वो जाली लगा के उस बास्केट को। अब अगर उसमें आप पानी भर के लाओगे, ठीक है, उसको टाइट जाली है, पानी भरेगा, लेकिन जब आप अंदर पहुंचोगे पानी को क्या होगा? अगर हम पढ़ेंगे कितना भी, आप पढ़ोगे नहीं, उसको रिटेन नहीं करोगे।
अगर आपने बास्केट रखी है जाली वाली, क्यों, वो तो लूज हो जाएगा, खेल खत्म, क्लास हो गया, दिन एक हो गया, वो खत्म। उसको रिटेन कैसे करोगे आप उसको? इस क्लास के बाद आप 1 आवर दोगे, कॉपी बनाओगे, उसके ऊपर रिवीजन करोगे, तब जाके वो रिटेन होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यू विल बिकम डे इन एंड डे आउट स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर। अब हर दिन स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, वरना अगर आपने वो जाली वाला रखा है बास्केट, तो ठीक है, जो भी उसमें भरेंगे हम, तो जब तक आप घर जाओगे वो सारा खत्म। यानी कि आप जैसे डे 1 पे थे, वही आप डे 10 पर भी हो। सो आपको हर दिन ये देखना है कि क्या आप में नॉलेज का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि एज ए टीचर मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की भी बनती है, पढ़ाने के अलावा, कि आप वो करो, मुझे आपको ये बातें करनी है आपसे, ताकि आप में से कुछ बच्चे, जैसे मुझे महरिश एजाज, मुझे पता है सीधे दिख रहा है कि मतलब, या एहसान है, या वो चिश्ती गर्ल जो है, they are really good students and they are retaining the concept and even Akib is answering properly and others are on। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पे हैं जिनको जो रिटेन नहीं करते हैं, ठीक है। मुझे उनको नीचे नहीं कराना है, मुझे उनको भी ऊपर उठाना है, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। ओके, आप सबको चाहिए कि आप मेहनत करें, क्योंकि आपका काम क्या है, मुझे पहले ये बताएं। आप यू आर ए स्टूडेंट, आपका क्या काम है? आप, अगर आपने पापा ने आपको, ममा ने अपने कॉलेज में भेजा है, कुछ पैसे उसमें लगाए हैं अपने, सिर्फ पैसे नहीं, उनकी उम्मीदें भी आपके साथ होती है ना, नॉट ओनली द मनी, उससे बढ़कर चीज होती है उनकी उम्मीदें आपके साथ। तो ये आपके ऊपर है ना कि आपको उनको उसके ऊपर खरा उतरना है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? तो वो कैसे होगा? आप हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि यू विल बिकम टॉपर। ऑल ऑफ यू विल हैव अ कंपटीशन कि किसको ज्यादा मार्क्स आएंगे। एवरीवन विल हैव अ कंपटीशन कि टॉप कौन आएगा, ठीक है। ये तो बात ही नहीं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, समझ में आ रही है सबको? सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेहनत करें, मेहनत के बगैर कोई चीज मिलती नहीं है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हीं के साथ होता है जो मेहनत करते हैं, है ना। तो इंशाल्लाह ताला आप सारे मेहनत करेंगे और हम रोज बरोज स्ट्रॉन्गर बनते जाएंगे, स्ट्रॉन्गर, वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। आप ऐसे पढ़ना है कि मतलब एग्जाम जब है ना, अब बोलो चाहिए एग्जाम कब आए, मैं अपनी कला दिखाता, मैं मार्क्स गेन करता, ये हो गया पढ़ना, ठीक है ना। जो मेरे पास, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको ये, लेकिन वो ही वाज अ शिया स्टूडेंट, हिज नेम वाज सुहेल हुसैन, ओके। वो मेरे पास नेटवर्किंग पढ़ता था, व्हेन आई वाज डूइंग माई सेल्फ एमसीए, ही वाज इन बीसीए, मैं खुद एमसीए कर रहा था और मैं उसको पढ़ा रहा था, ठीक है। उनको नेटवर्किंग मैंने पढ़ाई, वो पढ़ा, उसने पढ़ी नेटवर्किंग, उनको पेपर मिला, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, उनको मिल गया पेपर, उनको, उसने देखा ही नहीं, उसने कहा सर मेरे पास पेपर है, मैं खोलूंगा ही नहीं उसको, ये इसमें लिफा मैं इसी में रखूंगा, बिकॉज आई एम सो प्रिपेयर्ड कि मैं क्यों इसको 100 रुपया कुछ पैसे दूंगा इस पेपर के लिए, मेरे पास 100% प्रिपरेशन। और जिनके पास थे ना, उनको कम मार्क्स उससे आए थे, बिकॉज ही वॉज प्रिपेयर्ड, ही वॉज वेटिंग एग्जाम कब आए, मैं अपने दिखाऊं। समझ में आई? तो इसलिए आपको 100% आप अपना दे दो, मैं 200% दूंगा इंशाल्लाह, सो 300% बन जाएगा। फिर एग्जाम की तो वो तो बच्चों का खेल हो जाएगा। एनीवेज, सो जो हमारा D0 है, आई हैव सिलेक्टेड दैट बिकॉज उसमें ए बी कॉम्प्लीमेंट बी बी कॉम्प्लीमेंट जाएगा, ठीक है ना। नाउ आई आस्क निगहत फारूक, कैन यू अनम्यूट? यस, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बेटा आप मुझे बता सकते हो कि D1 कब सिलेक्ट होगा? सर 01 जब आएगा, एक कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड, सो 01 जब एक कॉम्प्लीमेंट, सो ए का कॉम्प्लीमेंट ये जा रहा है, तो आप देखिए यहां से एक कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, लेकिन बी कैसे लेगा? बी लेगा विदाउट कॉम्प्लीमेंट, दैट इज स्ट्रेट, राइट। सो बी यहां पे ले रहा है, ठीक है ना। सो इट्स गेटिंग बी स्ट्रेट एंड एक, सो जब हमारे पास आया यहाँ पे 01, तो हम देखेंगे क्या जो हमने D0 भी बनाया वो सिलेक्ट हो रहा है। अगर ये 01 है, क्योंकि D0 के पास दोनों कॉम्प्लीमेंट जा रहे थे, तो जब 0 यहां से जाएगा वो क्या बनेगा? 1, ठीक। लेकिन जब 1 यहां से बनेगा वो बनेगा 0, सो इसको एक इनपुट 0 आएगा, दूसरा 1, सो इट विल नॉट बी सिलेक्टेड, ओनली दिस वन विल गेट सिलेक्टेड, क्योंकि इसको जो हम 0 दे रहे हैं ए, वो एक कॉम्प्लीमेंट में ले रहा है, यानी कि इसको ये 1 बना रहा है, क्योंकि ए को हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो 0 को वो फ्लिप करके 1 बना रहा है।
और जो बी मेरा है वो हम सीधे दे रहे हैं इसको, और ये सीधे ही उसको ले रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं बना रहा है। सो 1 सीधे ही जाएगा यहाँ से, और जो यहाँ से आपने 0 दिया इसको, वो उसको 1 बनाएगा उसको। सो इसके पास दोनों 1 1 हो गए, इसलिए ये सिलेक्ट होगा। बाकी सारे सिलेक्ट नहीं होंगे इस सूरत में, क्योंकि डिकोडर के वक्त सिर्फ एक बंदा सिलेक्ट होता है, ठीक है ना। ओके, व्हाट अबाउट D2? अदनान, महराज, बेटा आप बताओ। D2 कब? 1 0। दैट मींस ए हम देंगे सीधे या कि कॉम्प्लीमेंट शक्ल में? सर सीधे और बी जाएगा कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए सीधे जा रहा है यहाँ से, यस सर, लेकिन बी कैसे जा रहा है? ये वाला कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट शक्ल में, ठीक है ना। व्हाट अबाउट द लास्ट वन, D3? हु विल टेल मी? कैन इर्तिजा सोफी टेल मी और महरूज शफी टेल मी? सर जब दोनों स्ट्रेट जाएंगे ए और बी। माशाल्लाह, यू आर डूइंग वेल। जब दोनों स्ट्रेट जाएंगे 1 1, यानी कि ये भी स्ट्रेट जाएगा, ये भी स्ट्रेट जाएगा, है ना। तो इस सूरत में जब 0 0 0 1 1 0 1 1, आप देखिए इन तीनों में कभी ना कभी 0 कोई इनपुट है, तो उस सूरत में जब इसको हम दे रहे हैं स्ट्रेट, तो इनमें कोई ना कोई इनपुट 0 होगा, तो ये कभी सिलेक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट होगा जब बोथ 1 होंगे, जब ये भी 1 होगा, बी भी 1 होगा। सो इन दैट सिनेरियो इट कैन ओनली गेट सिलेक्टेड, ठीक है ना। समझ आ रहा है सबको? किसी को क्वेश्चन ही और शी कैन आस्क मी। सो 3 to 8 लाइन डिकोडर, यह आपकी असाइनमेंट है आज, ठीक है। अब मेरे पास टाइम भी कम बचा है, मैं सोचा एनकोडर पढ़ेंगे, लेकिन अब यही पढ़ेंगे। अब मेरे पास 3 to 8, क्योंकि अगर मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, so I can have 2 to the power 3, that is 8 outputs, because combinations I can generate is 0 0 0 up to 1 1 1, जो मैं बता चुका हूं। So I can have 8 combinations, so that means I can have 8 outputs. Out of the 8 outputs कौन select होगा, that depends upon कि input क्या है, ठीक है ना। So I have to make a chart. This is my chart, this is my table, truth table, कि 0 0 0 up to 1 1 1, ठीक है ना। जब 0 0 0 तीनों 0 होंगे तो D0 will get selected। जब 0 0 1 होगा, this will get selected, and so on, कि अगर 1 1 1 होगा तो last one will get selected, the D7 will get selected. So can we make a truth table, can we make a circuit out of it? Yes sir. Can you? शाबाश। तो बताओ क्या करेंगे। तो हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे, A, B और C। सीधे भी होंगे और इनका कॉम्प्लीमेंट भी होगा, है ना। सीधे भी होंगे, इनका कॉम्प्लीमेंट भी होगा, C का भी सीधे भी होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट भी होगा। तो जब हमारा D0 सिलेक्ट करना है, D0 सिलेक्ट करना है, उसको क्या होगा, खाली D0 का बताओ। अगर मेरा D0 सिलेक्ट करना है, इसको क्या जाएंगे, ABC, तीनों कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, तीनों कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, है ना। So you can draw it. So seeing the table through the AND gate. Yes, this is I thought this is D0 and this is AND gate also. In fact, this is D AND gate and it is the output D0. So let us see the circuit. Here is the circuit, simple as it is, because it is now simple. कि जो D0 होगा उसको तीनों कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे, इसको A कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, और B वहां पे आप ऐसे ये करना डॉट, जो A कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, B जो है आपका वो B भी इसका कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, ठीक है, लेकिन C सीधे जा रहा है, देखिए, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यहां से है। और इसी तरीके से जो भी आपका ट्रुथ टेबल था उस हिसाब से आप ये बनाएंगे। एंड आर यू गेटिंग इट? सो डिकोडर मींस कि आपके कितने इनपुट्स थे, उनमें से आउटपुट कितने सिलेक्ट होंगे, 4। एक सर, एक ही होगा, हाँ, आउटपुट विल बी ऑलवेज। वेरी गुड। ये 10 11 क्या आ रहा है यहाँ से, मुझे समझ नहीं आया। यहाँ से शोएब बोल रहा कुछ 10, उसके बाद 11। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज दैट, कैन यू एक्सप्लेन इट? बिकॉज़ Sir, he was answering the questions that you asked us before. अब मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं रहा, यहाँ से टाइम में भी भाग जाएगा ये। सो देन व्हाट विल बी एनकोडर? एनकोडर विल बी द टोटल उल्टा ऑफ दिस। These will be my inputs and these will be my outputs, ठीक है ना। So if I say encoder now, it is now easy for you to make encoder. Encoder will have say 8 inputs, 3 outputs. If I have 4 inputs, 2 outputs, okay.